Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, my dear students, from your book of Honeydew, we are still continuing chapter number 4. Chapter number 4 had the title of Bepin Choudhury's Lapse of Memory, isn't it? We have read the first 3 sections. This story tells us about how Bepin Babu sort of forgets his trip to Ranchi, and he meets a lot of his friends and people that keep on reminding him that he has been there. Finally, he meets a physician who advises him to take a trip to Ranchi once again, and with that he would be able to remember. He says that is just the treatment good for him. So, Bepin Babu books his ticket for first class with the train and moves on for his journey. So now in the fourth section today, we will begin his journey by train to Ranchi and sees whether he remembers or still doesn't remember his trip about Ranchi. So let us start then. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब देखें, इनका जो ट्रीटमेंट होना था वो ये था कि रांची जब ये पहुंचेंगे तो इन्हें याद आ जाएगा कि ये रांची पहले भी जा चुके हैं, लेकिन जब ट्रेन से ये रांची पहुंचे वहां उतरते ही इन्हें एहसास हुआ कि ये तो यहाँ कभी पहले आए ही नहीं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. अब देखें, ये स्टेशन से निकलते हैं, एक टैक्सी लेते हैं और शहर के चारों तरफ घूमते हैं. याद करने के लिए कि अगर इन्हें कुछ देख के याद आता है, लेकिन जितनी भी गलियां थी, बिल्डिंग्स थी, होटल्स, मार्केट्स, ठीक है, बाजार जो थे एंड जो हिल थी, सभी को देख के इन्हें यही एहसास हुआ कि इन्हें बिल्कुल पहचान में नहीं आया. Would a trip to the Choudhury Falls help? अब देखें, जो सबसे पहली बार इन्हें आदमी मिला था बुक शॉप में, जिनका नाम था परिमल घोष, उन्होंने कहा था कि ये Choudhury फॉल्स पे गए थे. सो अब ये सोच रहे थे क्या Choudhury फॉल्स जाना फायदे में होगा. He did not believe so, but at the same time, he did not wish to leave the feeling that he had not tried enough. पहले तो इन्हें यकीन ही नहीं आया कि वहां जाके भी कुछ हो सकता है, लेकिन ताकि कोई कमी ना रह जाए, कंप्लीटली यकीन करने में कि यहाँ पहले नहीं आए थे, तो उन्हें सोचा कि चलो चलते हैं और हुड्रू के लिए एक गाड़ी बुक कर लेते हैं. ठीक है. At 5 o'clock the same afternoon in Choudhury, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bepin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bepin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." अब 5 बजे, ठीक है, शाम के 5 बजे, दोपहर ही माने चलें, दोपहर के 5 बजे हुड्रू में 2 गुजराती आदमी जो थे, ठीक है, जो कि लाइक पिकनिक मनाने आए थे, सो उन्हें बेपिन बाबू दिखते हैं बेहोश पड़े हुए. एंड उसके बाद जब बेपिन बाबू को होश आता है, वो क्या कहते हैं, मैं खत्म हो चुका हूं, अब कोई उम्मीद नहीं रहती. Next morning, Bepin Babu was back in Calcutta. He realized there was no truly hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the Islam Act? अब अगले दिन ही बेपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए थे. उन्हें वाकई में अब फील होने लगा था कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बचती. उनका सब खो जाएगा, उनका काम, उनका कॉन्फिडेंस, उनका उनका मानसिक संतुलन सब डिसबैलेंस हो जाएगा. एंड उनके दिमाग में ऐसा लगने लगा कि जैसे वो पागल खाने जाएंगे. Bepin Babu could not think anymore. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. अब देखें, बेपिन बाबू तो बहुत परेशान हो चुके थे कि अब उनका क्या होगा, isn't it? कि अब उन्हें बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा. अब वो क्या करते हैं, घर जाते हैं एंड डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं. अब डॉक्टर चंदा इतना के आते हैं, बेपिन बाबू नहाते हैं, आराम करते हैं एंड एक आइस बैग, दैट इज बर्फ जमाते हैं बैग्स में, तो उसे अपने सर पे रखा एंड थोड़ा आराम करा. तभी उनका जो नौकर है एक लेटर लाता है कि उनके लेटर बॉक्स में कोई छोड़ गया था.
अब देखते हैं इस लेटर में क्या है। ये एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसपे इनका नाम रेड इंक से, लाल इंक से लिखा हुआ था। ठीक है, ये देखिए बेपिन बाबू आराम कर रहे थे। ये इनका नौकर है जो इनका एक लेटर लाता है। ग्रीन कलर का एनवेलप है एंड रेड कलर की इंक से इनका नाम था। उस पर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट जब कोई चीज इमरजेंसी में होती है, कॉन्फिडेंशियल जब कोई चीज काफी सीक्रेटिव होती है। In spite of his condition, Bepin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अब देखें उनकी कंडीशन खराब थी, थके हुए थे, फिर भी उन्हें एक फीलिंग सी होती है कि चलो लेटर को पढ़ ही लेता हूँ। He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब उस एनवेलप को फाड़ के खोल के लेटर निकालते हैं एंड लेटर में क्या लिखा हुआ था, चलो वो पढ़ते हैं। Dear Bepin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution for your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. अब उनका जो एक दोस्त था ना चुन्नीलाल, उनका लेटर था। अब वो क्या कहते हैं, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मतलब के मुझे नहीं पता था कि कुछ, मतलब एफ्लुएंस का मतलब होता है जब आप अच्छे से कमा रहे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, ठीक है, तो मतलब आपने कमाना शुरू कर दिया तो आप में इस तरह का बदलाव आ जाएगा। क्या आपके लिए इतना मुश्किल था एक पुराने दोस्त को मदद करना जब वो मतलब अनलकी हो रहा था, जब उसके पास पैसे नहीं थे? अब मेरे पास इमेजिनेशन है, मतलब अब मेरी सोच है और मैं वही यूज करूंगा अच्छा करने के लिए, अपने लिए कमाने के लिए, एंड आपने जो मेरे साथ बिहेवियर किया था उसके पनिशमेंट के लिए। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने एक नॉवेल लिखा है जो कि आप एक पब्लिशर देख रहे हैं, अगर वो उनको सही लगा तो कुछ महीने तक मेरा गुजारा हो जाएगा, मतलब कि उनकी नॉवेल बिक जाएगी, उनकी कमाई हो जाएगी। ये था उनका लेटर। When Dr. Chanda came, Bepin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू ने बताते हैं मैं ठीक हूँ, जैसे मैं ट्रेन से उतरा रांची पे सब वापस आ गया दिमाग में। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. डॉक्टर चंदा कहते हैं कि काफी अलग और अजीब केस था, मैं इसके बारे में मेडिकल, जो मतलब मेडिकल की डॉक्टर्स की मैगजीन्स जैसे होती हैं, मैं उसमें लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bepin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. So अब बेपिन बाबू ने कहते हैं कि मैंने जिस वजह से आपको बुलाया था वो ये है कि मेरी जो कमर है उसमें दर्द हो रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। अगर आप एक पेन किलर, एंड उनकी बातचीत आगे तक चली। So again, this was the interesting story about Bepin Choudhury's lapse of memory. I hope you actually enjoyed. आप एक बार ये पूरी स्टोरी एक बार पढ़ना। हमने इसे 4 पार्ट्स में पूरा किया है क्योंकि लेंथी थी, but sooner I will give you a summary and that will make it more interesting. Okay, thank you so much.